Good afternoon, 11th class. So, class, we were on our last chapter of geography, first book, that is the Fundamental of Physical Geography. And we were basically understanding about biodiversity and conservation. And in this chapter, we have already done about like what is diversity, what is biodiversity, and what are the reasons basically behind the kind of or the variety of life that exists on Earth. And then we also had a brief discussion on the levels at which biodiversity can be discussed, basically genetic, species diversity, and diversity in ecosystem. Then we also had an idea about the importance of biodiversity, whether it was relating to the ecological role, basically to maintain the life on the earth and to maintain the balance of the whole environment and all of the earth. Then we also had an idea about the economic role of biodiversity. How does these actually are a kind of resource for us, for which from which we have actually lot of economic benefits. And then we also had an idea about the scientific role of biodiversity, where we understood that these biodiversity tell us about the, you can say, genesis, or kaise origin hua, kya kya evolution hua, all of these. Now, since we have already understood the importance, what is biodiversity and its importance, now we need to understand the other important aspect, और जो other important aspect है वो है अपना loss of biodiversity. Now here we should understand that somewhere human beings are the major reason, along with few other reasons, जिसके कारण जो हमारी biodiversity है उसका slowly and gradually क्या हो रहा है, number reduce हो रहा है. नाउ सिंस द लास्ट फ्यू डेकेड्स हमें पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुई है, और ऑब्वियसली इसके कारण क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, because obviously human beings will need more resources to consume, more place to live, for which they will somewhere destroy the natural habitation of these species, because of which obviously उनका loss हो जाएगा, loss in not only numbers but also in terms of the kind of species that exist on earth. So basically human population increase और उनके overuse या consumption of natural resources के कारण loss of species और उनको habitation जो है वो gradually increase हो रहा है. And here, like, just to understand it in more detail, if we look into the particular areas, जो tropical region है world के हमारे, basically between both the tropics and near the equator, तो जो tropical region है वहां पे basically which actually occupies only 1/4 of the total area of the world. ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की एरिया, इक्वेटर के अराउंड वाली जो एरिया है वो एक्चुअली में अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया हम देखें तो वर्ल्ड की 1/4 एरिया ही है, बट उसी में 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है. सो ऑब्वियसली जब इतनी सी एरिया पे इतने सारे लोग रहेंगे तो वो वहां के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे एंड एक्सप्लॉइट करेंगे. वहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुई है एट ए ग्रेट स्पीड, बेसिकली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. बट इसके साथ एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% स्पीशीज ऑन द अर्थ, ह्यूमन हैबिटेशन तो है ही वहां पे ज्यादा, बट इसके साथ अपने को ये भी समझने की जरूरत है कि वहां पे ही 50% ऑफ द स्पीशीज ऑफ द अर्थ का हैबिटेट है. तो उनके नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन का मतलब है ऑब्वियसली समवेयर बायोस्फीयर पे भी नेगेटिव इफेक्ट आना. Okay, so here we have understood basically human beings के कारण biodiversity का loss क्यों हो रहा है, basically because of the increasing population and then the way they are overusing the resources. ठीक है, इसके कारण अपने बायोस्फीयर में और बायोडाइवर्सिटी में somewhere negative में जा रहा है अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो. देन अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और भी बहुत सारे रीजंस है, जिसमें से अगर हम देखें जो नेचुरल कैलामिटीज होती है जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, ड्राउट्स, ये जो है ये उस पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा और फौना को डिस्टर्ब कर देते हैं. तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा,
उस इफेक्टेड रीजन की बायोडाइवर्सिटी पे भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनके नंबर ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, देन अलोंग विद दैट द अदर रीजंस आर की यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जनरली, वेदर इट इज इन यू कैन से कि एग्रीकल्चर के लिए, इन रीजंस के लिए जब हम ओवर यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का, या फिर और कोई जो पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स या टॉक्सिक हैवी मेटल्स, बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, उससे क्या होता है, जो वीक और जो हम बोलेंगे सेंसिटिव स्पीशीज होती है ना, उन पे अगेन नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उनके नंबर रिड्यूस होते रहते हैं धीरे धीरे, ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज दे आर वीक एंड सेंसिटिव स्पीशीज। तो ऑब्वियसली जब उनमें ये पॉइजनस चीजें, हैवी टॉक्सिक जो पॉइजनस हैवी मेटल्स या हाइड्रोकार्बन्स का यूज होगा या पेस्टिसाइड्स का, तो ऑब्वियसली उनपे बायोडाइवर्सिटी जो है विल बी रिड्यूस्ड। देन one more reason is generally what happens that a species is habitual of its particular area, but कभी कभी क्या होता है, कुछ species जो किसी एरिया के नेचुरल इनहैबिटेंट नहीं है, मतलब वहां के नहीं है ओरिजिनली, और उनको अपने लोकल हैबिटेट से किसी नए एरिया पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो अबाउट दिस टर्म अर्लियर। एक्सोटिक मतलब स्पेशल या समवेयर नॉट बिलोंगिंग टू आवर एरिया, फॉरेन से रिलेटेड, या हम बोलेंगे कुछ कहीं बाहर से आना, आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस कि जब कुछ एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस की जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, इससे डैमेज होता है बहुत बार। कैसे डैमेज होता है, जो ओरिजिनली वहां के लोकल जो स्पीशीज हैं उन पे ये जो एक्सोटिक स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रूव करते हैं, और ये समवेयर खुद एकदम हाई स्पीड में बहुत क्विकली स्प्रेड आउट होते हैं, जिसके कारण जो लोकल वहां के स्पीशीज है उनका नंबर धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, then if we move on to the next factor, the next factor is basically हमें पता है the human activities, स्पेशली जो हम बात करते हैं टाइगर, एलिफेंट्स, राइनो, क्रोकोडाइल्स, मिंक्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल, और उसके बाद बर्ड्स, इन सबको हंट किया जाता है बाय द पोचर्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, या तो हॉर्न के लिए, टस्क के लिए, हाइड्स के लिए, एंड ऑब्वियसली जब इन का बहुत ज्यादा हाई लेवल पे किलिंग होती है, हंटिंग होती है बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स एंड ऑल, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्पीशीज का नंबर रिड्यूस होता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली मेनी स्पीशीज हैव fallen into the category of the endangered species. अब जब हमें पता है कि इतने सारे रीजंस है, चाहे ह्यूमन रीजंस हो, चाहे नेचुरल कैलामिटीज हो, चाहे एक्सोटिक स्पीशीज का इंट्रोडक्शन हो, चाहे पेस्टिसाइड्स एंड पॉल्यूटेंट्स का समवेयर यूज हो या उनका रिलीज हो इन द एटमॉस्फेयर, एंड देन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या होता है, इनका नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। तो obviously internationally now awareness has come up to preserve these species. तो the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources जो है, that is IUCN, इन्होंने क्लासिफाई किया है थ्रेटन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को एंड एनिमल्स को इनटू 3 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजर्वेशन। ठीक है, तो यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, उन्होंने जितनी भी ये थ्रेटन स्पीशीज है जिनका जो नंबर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उनको बचाने के लिए उनको एनलिस्ट किया है इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज है, endangered, vulnerable, and then we have rare species. Just let us have a quick view on all of these. Now it includes those species which are in danger of extinction. Okay, that means the IUCN जो है उन्होंने पब्लिश किया इंफॉर्मेशन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने एक रेड लिस्ट निकाली है इन थ्रेटन स्पीशीज की। ठीक है, सो ये ऐसी स्पीशीज है जिनको अगर ध्यान नहीं रखा गया, उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए स्पेशल एफर्ट नहीं लिए गए, तो दे मे बिकम एक्सटिंक्ट।
ठीक है, like red pandas they have given, we have tiger, Asian elephant, gorilla etc. Then we have vulnerable species. अब ये जो vulnerable species है ये वो species है जिनको भी डेंजर है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सटिंक्शन हो सकता है इनका नियर फ्यूचर में, क्योंकि जो फैक्टर्स जिनके कारण इनका नंबर रिड्यूस हो रहा है अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है ये स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाए. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये समझ सकते हैं जो वल्नरेबल स्पीशीज है वो ऐसी स्पीशीज है जिनका सर्वाइवल जो है अश्योर्ड नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो ये जल्दी ही या तो एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ जाएंगी. ठीक है, तो बेसिकली एंडेंजर्ड वो है जिनको बहुत डेंजर है एक्सटिंक्शन का, एंड वल्नरेबल वो है जिनके नंबर रिड्यूस होते जा रहे हैं एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड एंड इफ नॉट टेकन प्रॉपर केयर तो हो सकता है वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज या एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ जाए. Then moving on to the third one, जो हमारा third है that is our rare species. Now rare species वो species है basically, okay let me give you example of vulnerable species. इसके example है अपना नीलगिरी लंगूर, one horn rhino, black buck, yak and sloth bear. ठीक है, and then we move on to the rare species. Now rare species वो species होती हैं जो जिनका number present ही कम है because वो एक limited area में ही मिलती हैं. So basically a species are very less in number around the world. They are confined to limited areas or thinly scattered over a wide area. ठीक है, so already number reduce है क्योंकि किसी एरिया में ही मिलती है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो obviously इनका भी number reduce हो सकता है. So इनके example hornbill, wild Asiatic buffalo, Himalayan brown bear. Okay, I'll just tell the examples of endangered again. Red panda, tiger, Asian elephant, gorilla. Vulnerable के हैं नीलगिरी लंगूर, वन हॉर्न राइनो, ब्लैक बक, याक, स्लॉथ बेयर. एंड देन रेयर का हम बोल सकते हैं हॉर्नबिल, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, हिमालयन ब्राउन बेयर. सो ये तीन कैटेगरी है जिनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया गया है कि इनका नंबर रिड्यूस ना हो. एंडेंजर्ड वो जो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो सकती है, रेयर जिनका नंबर कम है. सो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट ना हो, वल्नरेबल भी एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड में ना आए और रेयर के भी नंबर मेंटेन रहे. इसलिए वी नीड टू वर्क मोर ऑन द कंजर्वेशन. तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी स्पीशीज जो है वो समवेयर नंबर जिनके रिड्यूस होते जा रहे हैं और डेंजर होंगे ऊपर. सो अब हम ये जो रेयर स्पीशीज है इनको कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें पता है बायोडाइवर्सिटी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना. And all form of life are so closely linked that अगर एक में disturbance हुआ तो obviously क्या होगा, पूरे के पूरे हमारे environment में imbalance हो जाएगा. We know everything is linked together. We have already done in the previous classes. अगर किसी भी स्पीशी प्लांट या एनिमल्स की एंडेंजर्ड हो गई या उनका डिग्रेडेशन हो गया एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो जाएगा. इसीलिए बहुत अर्जेंट नीड है हमें एजुकेट करने की, लोगों को समझाने की कि हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे काम करना चाहिए. हमें एक्टिविटीज इस हिसाब से करनी चाहिए कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स और जो हमारी ऑब्वियसली हम डेवलपमेंट को बंद नहीं करेंगे बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिसमें हम कंजर्वेशन की भी बात करें, जिसमें हम डेवलपमेंट की भी बात करें, जिसमें हम देखें एनवायरनमेंट को नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कुछ एनवायरनमेंट पे पूरा एनवायरनमेंट खराब ना हो, एंड अलोंग विद दैट ये भी ध्यान दें हम कि फ्यूचर के लिए भी अपने रिसोर्सेज बचे एंड फाइनली बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे. ठीक है, और ये पॉसिबल तभी होगा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप्स के मिल के हम लोग कोऑपरेट करें. और सिर्फ बोलना ही अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे जो मैनेज करे चीजों को कि कैसे हमें कंजर्व करना है. और सबसे बड़ी अपनी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि सिर्फ ये नहीं है कि हमें कंजर्व एक बार के लिए स्पीशीज या उनके हैबिटेट को करना है, पर ये बात है कि हमें ये देखना है ये कंजर्वेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि स्पीशीज और हैबिटेट और वो कंटिन्यू हो. ठीक है, ऑब्वियसली अब जब हमने बोला इतना होना चाहिए तो कुछ हुआ भी है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है along with 155 अदर नेशन जो है उन्होंने कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी
अर्थ समिट हुआ था ब्राजील में जून 1992 में, रियो दी जेनेरियो में। वहां पे उन्होंने सबने मिलकर साइन किया था कि हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, और कुछ स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की गई थी। कहाँ पे? बेसिकली अर्थ समिट ब्राजील, रियो डी जेनेरियो 1992 में 155 नेशंस ने इस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में साइन किया था कि हम लोग बेसिकली इस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के थ्रू कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट करें जो हम अपने एरियाज में स्टार्ट करेंगे ताकि कंजर्वेशन हो बायोडाइवर्सिटी का। तो ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ने जो सजेस्ट की थी, जो ऑल ओवर इन कंट्रीज ने एक्सेप्ट की थी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो ये वाली हैं जो जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग है कि एफर्ट हमें करने चाहिए कि हमें स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और ऑब्वियसली सेकेंड चीज इसी से रिलेटेड कि ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ये एक प्लानिंग से होगा। क्या चीज? कि हमें प्रिवेंशन करना है कि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज का एक्सटिंक्शन ना हो। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कैसे हम बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बनाएंगे या हम नेशनल पार्क्स बनाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे कि प्रॉपर जो है फाइनली कंजर्वेशन हो, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट असली में हो, और प्रॉपरली मैनेजमेंट के थ्रू हो। Then the third is variety of food crops, forage plants, timber, trees, livestock, animal, their wild relatives should be preserved. अब जो food crops, forage plants, timber, trees, livestock, animals और उनके wild, ये जो है इनको ह्यूमंस ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अडॉप्ट कर लिया जैसे एग्रीकल्चर के थ्रू। तो इनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स है ना उनको भी हमें प्रिजर्व करके रखना है ताकि उनकी ओरिजिनल जो स्पीशीज है वो भी मेंटेन रहे। That means variety of food crops, forage plants, timber, tree, livestock, animals, उनको तो करना ही है प्रिजर्व, पर उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को भी हमें प्रिजर्व करना है। फोर्थ है हर कंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहिए हैबिटेट भी उन वाइल्ड रिलेटिव्स का और इंश्योर करनी चाहिए उनकी प्रोटेक्शन। ओके, दैट मीन्स ईच कंट्री शुड नो कि ये जो वाइल्ड रिलेटिव्स की हमने बात की थी पिछले पॉइंट में, ये जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं एग्जिस्टिंग फूड क्रॉप्स, टिम्बर ट्रीज और लाइवस्टॉक, एनिमल, फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह के, उनके ओरिजिनल हैबिटेट को पता करके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तभी तो वो जो स्पीशीज है वाइल्ड वाली वो भी प्रिजर्व होगी। देन फिफ्थ इज हैबिटेशन, जहां पे स्पीशीज फीड करती है, ब्रीड करती है, रेस्ट करती है या नर्स करती है, उन एरियाज को भी हमें सेफगार्ड करना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि ऑब्वियसली सेफगार्ड और उनको प्रोटेक्ट कर ले।